I have unmuted everybody. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Right. So today, children, we will discuss about some important things. Okay. One is the topic is bond parameters. Bond parameters. In chemical bonding, one topic is bond parameters. Means the information related to bonds. Okay, information related to bonds. Okay, informations related to bonds. Okay, in short, we can write bond parameters. So number one is bond length. Number two, let us see what is the number two. Number two is bond enthalpy. Enthalpy means energy. Okay, third one is bond angle. Okay, and then fourth one is bond order. Okay, this type of information they will require. Okay, and sometime also resonance. So resonance is a big task. It will be not completed in only single one because resonance are used in so many compounds. Okay, and then sixth one is bond polarity. Okay, and dipole moment. Okay, dipole moment. Dipole moment. So first of all, you have to remember all these things. Okay, and then ionic character. Ionic character. We have discussed little bit earlier also, but final approach we are going to give you. So now it is your duty today. Today you have to spend time on bond parameters, and there are 7 bond parameters, minimum bond parameters. Okay, children. Sir, So, what is number 7? what happened, beta? Sir, what is number 7? Ionic? Ionic character. Ionic character. Okay, sir. You can write percentage ionic character. Okay, percentage ionic character. Suppose a bond is formed, so I want to know that what is the ionic percentage. Okay. Okay. So first of all, you have to remember that we have to learn about 7 parameters. Repeat it at back of me. Bond length. Tell me. Bond length. Everybody. Bond length. Bond length. Bond length. Bond length. Bond length. Yeah, voice should come from inside. Then only it will enter into brain. Bond length. Bond length. Bond enthalpy. Bond enthalpy. Bond angle. Bond angle. Bond order. Bond order. Resonance. Resonance. Polarity. Polarity. Dipole moment. Dipole moment. Ionic nature. Ionic nature. Ionic nature. Ionic nature. Dipole moment. Dipole moment. Polarity.
Polarity. Polarity. Resonance. Resonance. Bond order. Bond order. Bond angle. Bond angle. Bond enthalpy. Bond enthalpy. Bond length. Bond Those length. nearly this 6 to 7 or 8 type of terms you should enter from today onwards in your brain. Now we will discuss sir. one by one. Okay. So number 1 is bond length, children. Write down something about bond length. Then we will discuss more bond length. Okay. So write down what is bond length. Right. Shall I dictate? You will write your own. Okay, sir. Okay, right. The write it down. The equilibrium distance. Sir, just a minute, please. The equilibrium distance. Equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms. Two bonded atoms in a molecule is called bond length. So what you have to note it down? The equilibrium distance. Equilibrium means, see, the bond will sometime expand and contract, and finally it will come to a final conclusion. That is known as equilibrium distance. And remember, between two bonded atoms, okay, in a molecule. Okay, right. Do you know how it is measured? What is the technique till now we have? Okay. Okay, some techniques are there. You can write down the techniques. Okay, just you have to remember the techniques. Okay, sir. Technique names. Okay, by spectroscopic technique, spectroscopic method. Now, what is spectroscopic method? Don't worry about that. First, we have to know that, okay, this is the method by which we can find out the distance. X-ray diffraction method. Diffraction. Electron diffraction method. Electron diffraction method. So just you remember the name of the techniques. Okay, and nobody will ask you what is spectroscopic method, what is X-ray diffraction method, what is electron diffraction method. Okay, if somebody asks you, give him my number, phone number. Okay. Okay, sir. Yeah. So first we have to do the test, know whether that person is suffering from COVID or not. Yes, sir. Yeah. But we have to tell that it is positive or negative. After how it is working and all, that is the department of the hospital. Okay, sir. Okay, sir. Of course, we will learn it, but not now. Okay, we have more work other than this also. Okay, children? Okay, sir.
and remaining I have given you already previously about atomic radius, van der Waal radius, okay, Yes, sir. metallic radius, everything I have given you, okay. Yes, sir. For same element, for same elements, this order I have repeated. This is the repeated version. R van der Waal, okay, but this was upon radius only, okay. This is about especially for radius. Did you remember? Yes, sir. Yes, sir. So if radius van der Waal, van der Waal, then R metallic, Metallic, then covalent. then R covalent. Do you remember? Yes, sir. This is the radius actually. So in actually radius only, if you remember, we used to write distance between A and B divided by 2. So previously we learned about the radius, and this was the bond length. Did you understand now? So you will get the radius when you will divide by, okay, you can, if a homo molecule, write DAA. Okay, children? Okay. Okay, sir. Okay. Yes, sir. This is for which molecule? DAA. It is a homo molecule or hetero molecule? Homo. Homo molecule. Okay. So can you write like this? 2 into R. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Equal to DAA. And what is DAA? This is known as bond length. I think now you are getting point. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any problem, please ask me, okay? Okay, sir. Yes, sir. Sir, I have a question, sir. Ionic radius and metallic radius are same. Yes, what happened, beta? Sir, ionic radius and metallic radius is same. No, different. Okay, sir. Metallic is only purely for metals only. Okay? Yes, sir. So got it, sir. Both the particles should be same. Okay, sir. Okay. This is for homo molecule. We can write directly. See, one more important thing is there, and that is about what? Okay, hetero molecule. If it is a hetero molecule, then what will happen? So see, for hetero molecule, how can we write? This is the bond length D, A and B. AB is a homo molecule or hetero molecule? Hetero. Only 1 or 2 participants are answering. Remaining where there are. Yes, sir. Hetero molecule. Yes, sir. त्रिजिता, आवाज नहीं आ रहा बेटा तेरा? Yes, sir. ओके, थोड़ा माइक के बगल में रहो। आर्या चक्रवर्ती, yes, sir. तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हमने सबको अनम्यूट किया हुआ, सबको। या थोड़ा बोल के पढ़ो बेटा। अपने आप को क्यों म्यूट कर ले रहे हो? क्यों म्यूट कर ले रहे हो अपने आप को? बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है क्या अगल बगल? नहीं सर। ठीक है, चलो क्या होगा तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा बेटा, क्योंकि ए का नेचर अलग है, बी का नेचर अलग है। ओके, Yes, Yes, sir. ठीक है, तो इसके लिए ऐसा करते हैं, रेडियस ऑफ ए निकाल लेते हैं कोई तरीके से, फिर रेडियस ऑफ बी निकाल लेते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें से हाँ, क्योंकि बॉन्ड वुड बनेगा तो हल्का फुल्का। देखो एक बहुत सुंदर कैरेक्टर है
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। टेंशन नहीं लेना, मैं एक एक करके समझा रहा हूं, सब फील करा दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पर पहले तो ये बता दो कि एक्स ए क्या है, अपने आप बताओ। एक्स ए और एक्स बी क्या है? Electronegativity of A. Electronegativity of A. ये तभी निकाल सकते हो जब तुमको इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा। तो अब इसका में एक एक चीज जानना पड़ेगा ना कि एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, ठीक है। तो एक्स ए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ व्हाट? बी। अब हम लोग को क्या चाहिए? सी का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग कहेंगे सी को कांस्टेंट है। the value of C depend on the type of atoms involved in covalent bond। मतलब एक C एक कांस्टेंट है, ओके। इसका वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक कांस्टेंट है, तो एक प्रॉब्लम है ये। तो ये कांस्टेंट वैल्यू इतना हम आपको बता सकते हैं, हाँ, इसलिए अभी टेंशन मत लो। अभी ये मान के चलो एक कांस्टेंट है। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर ये एक्स का मतलब क्या हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा? इसका एक्स ए का? यस सर। हाँ, ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है सर। अब तुम देखो ना, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है तो मान लेते हैं कुछ भी हो, 3.5 माइनस 3.5 जीरो हुआ कि नहीं? 0 इंटू सी क्या हो गया? 0 हो गया। 0। यस सर। अब जब दोनों का डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो डायरेक्ट आर ए प्लस आर बी हो गया कि नहीं? ना कोई टाना, ना कोई लूज हुआ, ना कोई गेन हुआ। समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, एकदम आएगा। तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो। Okay, sir. हाँ, सर मैं अभी कुछ देर पहले ज्वाइन किया हूँ सर, क्या हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर मैं एक थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ, अगर आप सेकंड पीरियड का अगर आप कोई भी एटम ले रहे हो सेकंड पीरियड का कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए चिल्ड्रन, ठीक है, ओके, तो सी का वैल्यू को आप 0.08 ले सकते हो, ओके। ओके सर। और कुछ बता रहा हूं, देखो, अगर ये सब कुछ है जो मतलब एक्चुअली तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली हम लोग को मिलना चाहिए। जनरली आपसे छोटा बड़ा ये पूछा जाएगा, एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ ले तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि अगर मान लेते हैं कि बॉन्ड है, फॉर बॉन्ड इन्वॉल्विंग सेकेंड पीरियड इतना हो गया, फॉर बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ओके, बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये लोग bonded to more electronegative atom, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब सेकंड पीरियड में है। देन सी का वैल्यू 0.06 हो जाए। ज्यादा अंतर नहीं आ रहा बेटा, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, इसलिए टेंशन मत लो। ओके सर। हाँ, इसमें एक्सेप्शनल केस है कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम मतलब फर्स्ट पीरियड के मेंबर नहीं होने चाहिए, मतलब अपवाद है ये सब, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये लोग नहीं होने चाहिए, लोग हाइड्रोजन हीलियम ये सब नहीं होना चाहिए। चलो, एनी हाउ, ठीक है। और एक टर्म है जो आप लोग को अभी नहीं मालूम है और उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यस सर। Yes, sir.
हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको थोड़ा समझाना है, अभी आप टेंशन मत लो। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट्स बॉन्ड लेंथ, ऑल्सो अफेक्ट्स बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन मैंने बताया था कभी आपको, कभी हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, sp हाँ sp2 SPS sp3 Yes, sp3d आप बोले थे। ऐसे ऐसे दिया था, लेकिन अभी टेंशन मत लो, ऑल्सो अफेक्ट बॉन्ड लेंथ, इतना अभी याद रखो। ठीक है, ओके हाँ ओके इतना सर। याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, और बॉन्ड लेंथ ओके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s सब ऑर्बिट होता है ना, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, जिसमें मतलब अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये जैसे ये h है, ये h है और ये h है, समझ गए बात को? हेलो, हाँ सर। तो अब देखो, ये पहला वाला बॉन्ड मान लेते A है, दूसरा वाला बॉन्ड B है, तीसरा वाला बॉन्ड C है। तो हमने क्या कहा है कि अगर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कहीं पर भी ज्यादा दिखाई दे तो वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा। यस सर। ठीक है, और आपके सामने में मतलब मैच करने के लिए मान लेते दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है sp2 और sp3, ये सब हाइब्रिडेशन का नाम है जिसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अब बताओ ये ABC 1 2 3 से कैसे जुड़ा हुआ है, बताओ, मैच द फॉलोइंग करो तो। सर आपको S का परसेंटेज निकालना है, दो ऑर्बिटल है, एक S और एक P, दो में एक S है, तो इसमें S का कैरेक्टर का 50%। परसेंटेज कितना हो गया, बोलो? 50%। 50%, यस। तो इसमें इसके अंदर हम बोल सकते हैं ना कि 50% S कैरेक्टर है भैया। इसमें कितना है बताओ? 33.33%। ओके, इसमें कितना है? 25%। 25%। 25% ज्यादा है या 50% ज्यादा है? 50%। इसमें 50% है, तो अगर S कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा। तो अब मैच द फॉलोइंग करो, मैच द 1 के साथ फॉलोइंग। C। 1 को किससे जोड़े? C के साथ। C के B साथ। के साथ। ओके, sp3 को किसके साथ जोड़े? B के साथ। A। अच्छा, A के साथ। समझ में आई बात? यस सर। सर और sp2 को किसके साथ जोड़े? B के साथ। किसको समझ में आ गया क्वेश्चन? सर आ गया सर। एकदम आएगा। ठीक है, हाँ सर। हेलो, क्या बोल रहा है? परसेंटेज कैसे निकाला? ओके, मतलब ये sp का मतलब समझे क्या हुआ? एक ऑर्बिटल s का है और एक ऑर्बिटल p का है बेटा। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 2। उसमें s कितनी बार है? 1 बार। तो दो मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, 2 मार्क्स का। हाँ सर। उसमें आपने 1 स्कोर किया है, तो कितना परसेंटेज स्कोर किया है? 50%। समझ में आया बात? इसमें क्या बोल रहा है? एक S है और 2 P है, मतलब क्वेश्चन पेपर 3 मार्क्स का है। उसमें S1 है, 100 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आया? 33.3। एक S है और बाकी लोग P है बेटा, S P P P। क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का था? 4। उसमें आपको कितना मिला 25। बेटा? S कितना है? चारों में S कितना है?
इंटू 100 कितना आया? 25. किसको किसको अब बहुत बढ़िया से समझ में आ गया? सर आ गया सर। आ गया। एकदम। आप डाउट बताते रहो, बाकी काम मेरा है। ओके? यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट इज bond length is inversely proportional to, okay, inversely proportional to number of bonds between two atoms. ये बात समझ में आया बेटा? आया है तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो। यस सर आ गया सर। आ गया सर। श्योर? सबको समझ में आ गया? हाँ सर। कोई तो ना बोलो बेटा, तब ना हम कुछ समझाएंगे। अच्छा नहीं आया सर समझ में। अच्छा सर नहीं आया सर। सर चलो, नहीं आया, वेरी चलिए, नाइस, वेरी बताइए सर। सबको समझे में आते जाएगा, फिर अब मेरा काम ही क्या रहेगा बताइए तो? कोई बीमार नहीं तो डॉक्टर का काम नहीं, कोई चोर चमारी कोई बदमाशी नहीं तो पुलिस का काम नहीं, कोई केस उस नहीं तो जज का काम नहीं। बेटा समझ गए बात को? हाँ सर। तो अब देखो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर ना दो एटम के बीच में बॉन्ड्स की संख्या बढ़ते जाएगी तो जो डिस्टेंस है वो कम होते चले जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर आ गया। इसका मतलब देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ओके? ओके सर। और एक बच्चा जो मेरे को काम दिया था, कहाँ गया वो, जिसको समझ में नहीं आया था? हम सर। बेटा ये मान लेते A है, ये B है और ये C है। दो एटम के बीच में कहां पर डिस्टेंस ज्यादा है बेटा? बॉन्ड कम होगा। देखिए C में। लिखा हुआ है बॉन्ड C में। लेंथ। बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता लग गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ? दो एटम के बीच का डिस्टेंस। यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होते जाएगा। इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? C नंबर सी सिंगल बॉन्ड सी। सी। बॉन्ड। फिर अच्छा छोटा उससे ट्रिपल छोटा बॉन्ड। ये और सबसे छोटा ये हो जाएगा। किसको किसको आ गया समझ में? आ गया समझ में। सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। यस सर। ओके, अब देखो बहुत मजेदार चीज। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। एटम समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो। आ गया। सर एग्जांपल दीजिए। समझ नहीं सर आया। एग्जाम्पल दीजिए सर। वेरी नाइस। जो मेरे से डाउट पूछते हैं ना वो रियली मेरे भगवान होते हैं भैया, क्योंकि वो लोग के चलते ही मैं वो लोग मेरे को काम देते हैं। बात समझ में आई? हाँ हाँ सर। सर। तब तो अब देखिए, इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं तो एग्जाम्पल देने के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन एक मिनट में टाइम देख लेता हूँ। टाइम कितना हुआ है? 3:33 है टाइम। देखो बच्चों, बॉन्ड लेंथ साइज पे डिपेंड करता है। एक एटम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसमें रेस्ट्रिक्टेड है, कंडीशन अप्लाइड। ओके? ओके सर। ओके सर। ओके, अच्छा आपको तो इतना तो मालूम होगा, एफ फिर कल बाहर आई आंटी जी। यस सर। इसमें कौन सा एटम छोटा है? फ्लोरीन। सर F।
कौन सा एटम बड़ा है? आयोडीन। श्योर, लॉक कर दे। सर लॉक कर सर। दीजिए एकदम। अच्छा, तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, कृपया आप बताइए कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, मैं ना अब शॉर्ट में लिखूंगा जिससे कि कुछ समझ में नहीं आए, थोड़ा कंफ्यूजन बना रहे, अच्छा। कंफ्यूजन बना रहना चाहिए। ये देखिए, HI, HBr, HCl, HF। अब सब में H कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। और सबके बीच बॉन्ड है, तो जो होता है वो दिखाते नहीं, और जो दिखता है, जो होता है वो दिखाते नहीं। मतलब जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ठीक है सर। ठीक है, हम लोग खुद को समझना पड़ता है कौन छोटा कौन बड़ा। तो सब में H तो कॉमन है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये छोटा सा एटम, ये बड़ा सा एटम, ये और बड़ा सा एटम, तो ये तो और बड़ा सा एटम, और ये H, ये H, ये H, ये H। H तो कांस्टेंट है सब में, हाँ हाँ सर। और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो सबका ये है। हाँ और दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बताओ इसमें सबसे छुटका कौन है? छुटका बॉन्ड। सर HF। क्लोरीन का सबसे छोटा है। हेलो, सर HF। फ्लोरीन फ्लोरीन। क्लोरीन सर, सबसे क्लोरीन। बड़कू, सबसे बड़कू आयोडीन आयोडीन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयोडाइड। समझ में आया बात? हाँ सर। किसको किसको समझ में आ गया? जोर से बोलो। हाँ सर आ गया सर। ओके, तो मैं ऑर्डर ऐसा लिख दूं, धाय धाय धाय। कोई शक? नहीं सर। नो सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय सर। हाँ, ऐसे बोलना है। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय सर, ऐसे बोलना है। चलिए नेक्स्ट। ओके, एक और चीज है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कभी समय आएगा तब। अभी आप उतने मेच्योर्ड नहीं है। दैट बॉन्ड लेंथ इज आल्सो अफेक्टेड बाय हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको नोट डाउन करके रख लो, है ना, इंस्टॉल करके रख लो कि एक टर्म सर ने कहा था, बोला था बताएंगे बाद में। ठीक है, हेलो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। क्या यस लिखे? सर। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हाइपर के बाद क्या लिखे? हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन जो बोल रहे हैं वो भी तो सुनो कम से कम। हेलो, हाँ सर। हाँ यस सर सर। लिख रहे हैं हाँ, सर। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस का दूसरा नाम कंजुगेशन है। जो IUPAC होगा ना, किसी दिन मेरा लेक्चर देखेगा ना, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो वो बोल देगा एकदम मेरा ना, आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम डरावना डरावना टर्म दे रहे हैं, आप एकदम सिंपल सिंपल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये है रेजोनेंस, मतलब एक तरह का कंजुगेशन, और वो दूसरा है हाइपर कंजुगेशन। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। चलो, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, बॉन्ड एंथैल्पी की बात। जो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी को पहले तो घरेलू शब्द में बोलो बेटा। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी। बस, एकदम डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है बेटा। हेलो, हाँ बेटा, नमस्ते, बहुत बढ़िया हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, जल्दी बोलो कुछ, मैं तो नहीं तो 5 बजे कॉल करूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। हाँ 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 हाँ, आ जाओ।
सच में आ जाओ, सच में आ जाओ, सच पेपर हो जाएगा, सच में आ जाओ। हाँ हाँ, कभी भी आ जाओ। ठीक है, तब मैं 5 बजे कॉल करता हूँ। हाँ ठीक। यार हम लोग भी पास रहते तो हम लोग भी आते हैं। तू सुन लिया ना, सुनना नहीं चाहिए बात सब। चलो, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी। ओके बाबू, Yes, sir. एच के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कहाँ पर? कौन सा एग्जाम्पल बोल रहे धन्य हैं? हो, धन्य हो यार। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। मैं बोल रहा हूँ एच किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ पर? बेटा किसी बता दो। HF से भी जुड़ा है, HCl से भी, HBr से भी, और HIG. जुड़ा हुआ है कि टूटा हुआ है? सर जुड़ा हुआ हुआ है। है. आपको मालूम है, जुड़ी हुई सर, हाँ, चीज को सर। अगर तोड़ना हो तो एनर्जी देना पड़ेगा। उसको फेंकना पड़ेगा। पक्का ना? हाँ सर। एनर्जी हाँ, लगेगा सर। कि नहीं लगेगा? बोलो। हाँ, हाँ sir. सर। फेंकने के लिए कोई लगेगा भी चीज सर। को तोड़ दो, कोई भी चीज। मान लेते हैं ये रिमोटे है, देखो रिमोट है। सर हाँ सर, फेंक दीजिए, टूट जाएगा। हाँ, तो फेंकेंगे तो एनर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। सर, हाँ सर। तो कोई भी जुड़ी हुई चीज को तोड़ने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी। और अगर कहीं पर बॉन्ड बना हुआ है, उसको अगर तोड़ना है तो आपको कौन सा एनर्जी लगाना पड़ेगा? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। मैंने यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ही लिखा है बेटा, तो इसका क्या डेफिनेशन अपने आप बना लोगे बेटा? To break down the bond, energy is needed. वाह, Sir, the energy required to break a तुम bond. मतलब फ्यूचर के साइंटिस्ट होने वाले हो बेटा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। हे भगवान, हे ईश्वर, या अल्लाह ताला, ये बॉन्ड जीजस। ऐसे कभी नहीं होता है भाई। अरे तो बॉन्ड तो दो एटम के बीच में ही बने रहता है बाबू। अरे एक के बीच तो नहीं होगा। एक के बीच में कभी बॉन्ड देखे हो? नहीं सर। बॉन्ड का मतलब ये है कि दो चीज जुड़ा हुआ है आपस में। आ गया बात समझ में? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। आगे सर। आज भैया क्रिकेट मैच है। ओके ओके। किसके बीच में? इंडिया के बीच में। दूसरा पार्टी कौन है? वो भी इंडिया ही है। बारे भैया, बढ़ो आगे। हाँ सर, हाँ सर। तो लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द amount of energy is required to break 1 mole of bonds, 1 mole of bonds of a particular type, of a particular type, okay, between, ले तेरा भी हम पूरा जानकारी लिख देते हैं। पर्टिकुलर टाइप हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन फिर कोई पूछा था दो एटम के बीच में, ये के बीच में, तो हम लिख देते हैं between two atoms लिख देते हैं भैया बढ़िया से। 2 atoms in a gaseous state, in a gaseous state, ठीक है ना? हेलो सर आप रखना पूरे एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन। क्या बेटा इतना जल्दी जल्दी क्या बोला? थोड़ा स्लो मोशन बोलो। अब लग रहा है कि पूरे एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन। हाँ हाँ भाई।
वही तो क्या बोला है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब मेरे हिसाब से एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, खत्म कहानी। हाँ लेकिन कहते जब सजा वजह के नहीं लिखा तो इंसान को समझ में नहीं आता कि हाँ कुछ पढ़ा है, ठीक है। तब तक 2 नंबर नहीं मिलेंगे। सर ठीक है, तो बढ़े आगे। हाँ सर। यस हाँ सर जब इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि शाम को 7 बजे से पार्टी स्टार्ट होगा और आप यू आर मोस्ट इनवाइटेड इन दिस पार्टी, यस सर। ठीक है। हेलो बेटा, हाँ तो हाँ इसके सर हाँ बाद सर 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 तो इनविटेशन कार्ड में लिखा है, इसका मतलब भी तो है रे बाबा 7 बजे जाओ, गिफ्ट लेके जाओ और वहां पर जो जो चीज खाने का रखा हुआ उसको पकड़ पकड़ के खा जाओ। यस सर। बार बार उसको बेचारे दूल्हे को या जो भी बुलाया तुम दुल्हन को जा जाके परेशान कर रहे हो, हे दुल्हन ये वाला आइसक्रीम खा ले, हे दुल्हन ये वाला कबाब खा ले, हे दुल्हन ये वाला जो पानी पूरी हम ये खा लें, हे दुल्हन ये वाला पानी पी लें। अब बेचारी दुल्हन और दूल्हा वो लोग आपस में शादी ब्याह करें, तुमको समझाते रहे बार बार। अगला बोल दिया कि भैया तुम लोग इनवाइटेड है मेरे पार्टी में आओ, नहीं समझ में आया बात? हाँ सर। हाँ सर। करोगे परेशान? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, वो लोग अपना काम करने दोगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, कि तुमको बुला के बहुत बड़ा गलती कर दिया। ठीक है। अच्छा सर, ये मोल ऑफ बॉन्ड्स क्या है सर? कौन सा मोल ऑफ बॉन्ड्स? मोल? अरे। मोल? अरे ये कौन नहीं पूछा? सर। ये कौन पूछा? उसको हम स्किल 2 में बता दिए थे। एक डजन का मतलब बोलो 12 और 1 मोल का मतलब 6.023 into 10 to the power 23। इतने सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे पर मोल। यस सर। सर सिर्फ मोल नहीं सर, मोल ऑफ बॉन्ड्स क्या है सर? मोल ऑफ बॉन्ड। अरे तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड। एक सुन भाई, हाँ सर एक समझ गए। डजन का मतलब क्या होता है? 1 डजन सर 12 सर। खाली 12 होता है ना? हाँ सर। लेकिन हाँ, 1 सर। डजन ऑफ एप्पल्स बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 12 एप्पल्स। 12 तो खाली 1 मोल मतलब इतना, और जब हम बोले 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ? इतना सारा बॉन्ड। इतना सर सारा बॉन्ड, तो वही लिखा है, 6.023 वही तो लिखा है मैंने। हाँ सर, कभी सुने नहीं ना हाँ सर। सर ठीक है सर। कभी नहीं सुना है। ओके, अब सुन लिया बेटा, हाँ सर। अब करोगे परेशान। 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, हाँ ठीक सर। है। हाँ हाँ सर। मतलब अगर सी बॉन्ड सी को तोड़ना है तो ऐसा वाला बॉन्ड कितना होना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल मतलब इतना सारा बॉन्ड होना चाहिए। उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रहा है उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी। हाँ सर एकदम। ओके सर। बॉन्ड एनर्जी बोलो, बॉन्ड एंथैल्पी बोलो। बढ़ जाओ आगे, बढ़ू? हाँ सर सर। हाँ सर हाँ सर। एकदम एकदम सर। हाँ सही सर। कुछ नहीं बढ़ सकता है, कुछ नहीं बढ़ सकता है क्योंकि ऑलरेडी 48 मिनट्स हो गया, ठीक है। और 2 मिनट है सर। 2 मिनट है तो लो एग्जाम्पल लो। हाँ सर। ओके देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड और सी सिंगल बॉन्ड, किसको बॉन्ड, कौन से बॉन्ड को तोड़ने में आसान होगा? सिंगल बॉन्ड को। सी सिंगल बॉन्ड। तो अगर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी बोला जाए, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी या एनर्जी, तो बोलो क्या किया जाए, किसका ज्यादा होगा, किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? सिंगल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को? सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा देन डबल। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। समझ आया है, बोले। हाँ बोलो बेटा। Sir, bond enthalpy is directly proportional to number of bond between two atoms. हाँ, क्या लिखा है, लो मैं लिख देता हूँ, तुम एकदम फ्यूचर का साइंटिस्ट है बेटा। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। देखो लिख भी दिया मैंने, दिखा बेटा?
नहीं दिखा सर। हाँ हाँ सर सर। सर नहीं दिख रहा है सर। सर वो लेकिन पास कोई लिख के- बात, लेकिन वही है। तुमने सही कहा बेटा। ये देखो, मालूम है कार्बन कार्बन को बॉन्ड को तोड़ने में केवल 341 किलोजूल लगता है। किलोजूल। हाँ सर। और डबल बॉन्ड को तोड़ने में कितना लगता मालूम है? 610। ओह, अब और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में कितना लगता मालूम है? 828 1000। किलोजूल पर मोल। अच्छा। ज्यादा लग गया कि नहीं लग गया? हाँ हाँ सर। सर। एक सिंपल सा बात बताओ भैया, हम लोग जब बाहर जाकर जब ऑर्डर देते हैं भैया, एक तो एग रोल बना देना, एग रोल, हाँ सर। ठीक है? तो वहां लिखा हुआ है एग रोल, और कहीं पर लिखा हुआ डबल एग रोल, डबल एग रोल, और हाँ कहीं पर सर। लिखा हुआ है ट्रिपल ट्रिपल एग ट्रिपल रोल। एग रोल होता है सर। सर का नया एग रोल। ऐसा इंसान सबसे पाला पड़ा है भाई। जब हम एक एग डाल सकते हैं तो दो भी डाल सकते हैं, तो तीसरा नहीं डाल सकते? हाँ सर, हाँ ये सर, बात सही है और है सही कि है। खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे वो अलग है, लेकिन बना तो सकते हैं। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एकदम सर। तो अब बताओ सबसे कम दाम किसका होगा? सर एग रोल सिंगल एग रोल। लिख रहा था। तो इसका 25 रुपया हुआ, तो डबल एग रोल का बोलो। सर 40 रुपए। चलो 40 बोलो, तो ट्रिपल का कितना हो गया? सर 70 रुपए। 70 रुपया। समझ में आ गया? क्या भयानक रेट बढ़ा रहा भाई, तुम होटल को बंद करवाएगा क्या? 25 है तो डबल के लिए तुम 5 और लगा लो यार, इसको 30 करो और इसको 35 करो, बस काफी है इतना। सर सर इतना सस्ता में नहीं मिलेगा सर। सर इतना सस्ता कैसे चलेगा? दुकानदारी सर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलते हैं। तब तक कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा इसी चैनल से। बाय बाय। हाँ सर। एकदम सर। लाइक करते रहेगा, सब्सक्राइब करते रहेगा, शेयर करते रहेगा। सर ठीक है सर। हाँ हाँ सर, जरूर।